Good morning, students of the BSc third year classes. The subject is the zoology, and today's topic is genetic engineering and its application, which means that I was discuss back-to-back lectures to the related topic of the biotechnology. In the biotechnology, the one of the unique process of the genetic engineering which are going on and form to the desired cloned genes or the DNA for the use of to the different fields, so that today's topic is totally depend upon their application after that to the formation after or apply to the genetic engineering process. Just remind that in here to the what about to the genetic engineering process, recombinant or also called to the recombinant DNA technology. The recombinant DNA technology is the processes or the method to deliberate modification in an organism, deliberate modifications in an organisms using in vitro conditions, vitro processes, which means that to the genetic engineering is the vitro processes. In the vitro processes, that is the deliberate to the modifications of the organism's genetic constitution or the genetic composition, which means that to the organism which have to the modifications in the genetic constitution or the genetic makeup, and thus to the form to the desired or recombinant gene at the in vitro condition or the vitro processes, which means that to the into the lab condition, so that to the recombinant DNA technology in which to the formation of to the recombinant DNA molecules which are combined to the two different type of the segment of the DNA from to the two different organisms, so that you can say that to the after the formation of the recombinant DNA segments or recombinant DNA molecules, that is which applied for that to the different fields. So first of all to the introduce into the host cells where are the obtain a lot of the clones for the particular fields and the works, so that in the genetic for the genetic process, what is the objective? What about to the objective of the formation of recombinant DNA molecules? Why are to the recombinant DNA molecule why are formed? What is the objective? What about to the objective for that to the formation of to the heterogeneous DNA molecules? That is the as you can say, that is the gene on the present into the heterogeneous heterologous as you can say heterologous DNA. So that gene which contain to the gene is called to the chimeric gene, and that's chimeric gene. So formation of to the heterologous DNA or the recombinant DNA, what is the main objective? What is the purposes for that to the purpose is that there are the 2 or 3 numbers. First numbers is the obtain to the large number of the copies of a specific DNA fragment. First is the objective is that objective in which first is obtained for a specific DNA segment.
for the obtained for the specific DNA segment, the obtained to the large number of the copies of a specific DNA segment, and another ones is going on in the back-to-back process. The recover the large quantities of the protein, large quantities of the protein, large quantities of the proteins produced by the concerned gene, This is the more important things for that to the objectives. The obtain to the large number of the copies of the specific DNA fragment, and the second is the recover of large quantities of the protein produced by the concerned gene, and third is the integrate the gene into the chromosome of a target organism where it can express itself. To integrate the gene into the chromosome, to integrate gene into chromosome. This is the main objective. First objective, obtain to the specific DNA segment, for that to the using to the different fields. So large amount, and that is the large amount for, found after the introducing to the recombinant DNA segment in the host cell, that is the in the genetic engineering processes, that is the widely used to the bacteria by the scientists, because where are the clone is found into the large in number. Second is the large quantities of protein produced by the concerned gene. For the concerned gene, to the numbers of the proteins, because you are know that very well, that is a specific type of the protein which are found for specific genes. So another one, to integrate the gene into the chromosome, that is the integration of to the genes into the chromosome, that's to the create where it can express itself. So that's to the there are the objective. In the topics we are going to the we will goes to the their application. What is the application? Genetic application of the genetic engineering. So that all directly is goes to the different kinds of the fields which concern up to the their application. That's just see the here what is the different kinds of the applications, and these applications is a very important for that to the express. First is the wide opportunity for the scientists in the genetics, medicines, agricultures, and to the industries. So lot of the applications. First application is the genetic diagnosis and cure of genetic disease. Diagnosis and cure of genetic diseases. First application in the field of scientists, we find to the lot of the genetical disease which concern in the human beings, so that's to the first of all to the curing and behalf to the diagnostic. So to the about to the 5,000
genetical disease which are concerned to the human beings, and that's like to the sickle cell anemia, hemophilia, purine nucleoside phosphorylase deficiency, Melton enlace, and to the a lot of the another genetical disease which are found. These concerned with the fault gene or the bad gene for the production of to the protein, and that's that's to the determined to the different work. First, the scientist is the cure diagnosis. What is the diagnosis process of the genetic engineering? तो आज के चैप्टर में जो कि एप्लीकेशन से जुड़ा है, हम पहला एप्लीकेशन हमने लिया है डायग्नोसिस एंड टू द क्योर ऑफ द जेनेटिक डिजीजेस। इसके अंतर्गत जो साइंटिस्ट हैं ये एंटिसिपेट करते हैं कि फ्यूचर में जो है बेटर जीन को प्राप्त करके उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करके क्लोन को बना के हम जो है इस जेनेटिकल डिजीज को ख़त्म कर सकते हैं, जिसको जीन थेरेपी के नाम से जाना जाता है। दैट इज द साइंटिस्ट विच एंटिसिपेटिंग फॉर द फ्यूचर, दैट इज टू द सम ऑफ द डिजीज विल द क्योर्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉर्मल जीन। तो हम इस जेनेटिकल डिजीज जिस जीन के माध्यम से जिस जीन के माध्यम से ये डिजीज़ हो रहा है, मान लीजिए अगर हमने हीमोफीलिया की बात की तो हीमोफीलिया का कंसर्न एक पर्टिकुलर जीन से होगा। वो जीन जो है एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी और उस प्रोटीन के फॉर्मेशन से ही ये जो हमारी बॉडी में इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है वो होगी। तो अगर इसमें जो है जो जेनेटिकल डिजीज़ हुआ है, हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। आई विल want to that about to the why are to the genetical disease which appeared into the human beings. What is the cause? The cause is that to the mutation into the genes, mutation into the DNA or the nitrogenous base of the DNA, so that to the they are the nature of the genes will change, because that is the where the alteration ultimately alteration which are takes place inside the, so that to the there the production of the protein is not to be good, and that's to the release to the another type, so that the function is also a change. So that is the genetic as a genetical disease which are caused. तो एक विशेष प्रकार का जेनेटिकल डिजीज हो जाएगा, और जो हमने एग्जांपल के तौर पे लिया अगर यहाँ पे, तो उस जीन को वो जो डिफ़ॉल्ट जीन है वहाँ से उसको क्या करते हैं, उसको वहाँ से हटा के वहाँ पे नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस कराया जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ टू द नॉर्मल जीन, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल जीन, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल जीन। तो नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस करा के जीन थेरेपी के माध्यम से, जो मैंने कहा ये जो प्रोसेस है बहुत महत्वपूर्ण है, जीन थेरेपी। Gene therapy is the processes for that to the remove to the default gene and introducing to the normal gene to cure or the diagnosis to the particular genetic disease. So तो यहाँ से जीन थेरेपी करके जहाँ पे इंट्रोडक्शन करेंगे हम नॉर्मल जीन का, और उसके आधार पे हम जो है डायग्नोसिस और क्योर की प्रक्रिया करेंगे। तो ये प्लान होता है जेनेटिक थेरेपी के अंतर्गत, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो फॉल्ट जीन है जिनके माध्यम से ये डिजीज़ हो रहा है, मान लीजिए हीमोफीलिया का हमने एग्जांपल लिया, अगर हीमोफीलिया हो रहा है तो वो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल टू आइडेंटिफाई who is the genes which found in the DNA, what is the location
तो वहाँ से उसको क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। अगर किसी स्ट्रैंड पे, डीएनए के स्ट्रैंड पे वो जीन है, वहाँ पे डीएनए पे जीन है, तो उस जीन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर वहाँ से आइसोलेट करेंगे और फिर नॉर्मल जीन को उसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे। यहाँ पे जो हमने लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉर्मल जीन, लेकिन नॉर्मल जीन अब चूंकि हमको क्या करना है, हमने ये किसको बनाया, विट्रो कंडीशन में बनाया। विट्रो प्रोसेसेस है ये, तो विट्रो प्रोसेसेस के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इसका क्लोन बनाएंगे। पहले नॉर्मल जीन का क्लोनिंग करेंगे, तो क्लोनिंग करने के बाद उसको जो है तब इंट्रोड्यूस कराएंगे, और इंट्रोड्यूस कराने के बाद फिर जो है उसको वो नॉर्मल करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से, तो इसलिए जो कंसर्न जीन है जिसके माध्यम से ये हीमोफीलिया रोग हो रहा है, या सिकल सेल एनीमिया हो रहा है, या फिर जो है हम कह सकते हैं कि डायबिटीज़ भी होता है, मतलब मैंने कहा कि 5000 से अधिक जो जेनेटिकल डिजीज़ हैं वो होता है, तो उसमें सारे आते हैं। और हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया, तो जिस कंसर्न जीन्स से ये हो रहा है उस पे जो एलील्स हैं उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, डिफेक्टिव एलील्स ऑफ द कंसर्न जीन, डिफेक्टिव एलील्स ऑफ कंसर्न जीन, जो कंसर्न जीन है, डिफेक्टिव एलील्स ऑफ द कंसर्न जीन, जिस जीन पर, अब आप जानते हैं कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन्स कॉल्ड टू द एलील्स, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं उसके जो कंसर्न जीन से होते हैं, और वो जीन के कारण ये हो रहा है, तो वहाँ से क्योर करने के लिए हम जो है जीन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं इसको। तो इसके आधार पे अगर हम इंट्रोडक्शन करते हैं तो उसको जीन सर्जरी भी कहा जाता है, जीन सर्जरी। वी आर आल्सो कॉल्ड टू द जीन सर्जरी फॉर दैट, टू द क्योर एंड द डायग्नोसिस ऑफ टू द जेनेटिक डिजीज, पर्टिकुलर जेनेटिक डिजीज, फॉर दैट टू द रिमूविंग द डिफेक्टिव और द डिफॉल्ट जीन फ्रॉम दैट टू इन द नॉर्मल जीन। तो नॉर्मल जीन को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं, और इंट्रोड्यूस कराने के बाद जो है इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो देखने के बाद ही क्लियर होते हैं। अब जबकि इसके हिसाब से अब आप समझ सकते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन है वो कितना वाइडेस्ट है। तो एक तो पहला हमने एप्लीकेशन बताया किस फील्ड में, जेनेटिक डिजीजेस के फील्ड में, वहाँ पे डायग्नोसिस की प्रक्रिया करते हैं और जीन थेरेपी का। तो सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि नॉर्मल जीन की क्लोनिंग हो, पहले जो डिफेक्टिव जीन का आइडेंटिफिकेशन हो, और क्योर करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए उसका वहाँ से रिप्लेसमेंट किया जाए, वहाँ पे उस डिफेक्टिव जीन को हटाया जाए। जो एलील्स है जीन पर, जीन्स जो कंसर्न जीन है उसका एलील जो है उसको जो है वहाँ से रिमूव किया जाएगा। रिमूव करने के पहले जो है वहाँ पे जो नॉर्मल जीन होता है उसकी क्लोनिंग बनाई जाती है इन विट्रो कंडीशन में, और फिर जो है पर्टिकुलर होस्ट में इंट्रोड्यूस करा के जो है वहाँ से उसको क्योर करने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने पहला एप्लीकेशन देखा। दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द फाइन केमिकल्स एंड द रेयर ड्रग्स। प्रोडक्शन ऑफ fine drugs, fine chemical and rare drugs, fine chemical and rare drugs। अब देखिए दूसरे फील्ड में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कर रहे हैं किसका, फाइन केमिकल का और रेयर ड्रग्स का। दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, दैट इज द फार्मास्यूटिकल फील्ड। थ्रू द जेनेटिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस द मैनिपुलेट द बैक्टीरिया, and after the manipulating bacteria, the industrial level
द प्रोडक्शन अप टू द फाइन केमिकल एंड द रेयर ड्रग्स। तो यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के जो ड्रग्स होते हैं, जो मेडिसिन्स होती हैं उसको, और कुछ ऐसे विशेष प्रकार के केमिकल्स का प्रोडक्शन किया जाता है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का आधार होता है। तो जैसे ह्यूमन जीन्स अप टू द इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन, थाइमोसिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स and to the blood clotting factors, interferons have to the clone to produce to the pure gene। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिए अभी, जैसे हमने कहा कि आपका इंसुलिन है, थायोसिन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स है, क्लॉटिंग फैक्टर्स है, इंटरफेरॉन है, ये इन सब चीज़ को बनाया जाता है ड्रग्स के रूप में, ड्रग्स जो रेयर ड्रग्स है और केमिकल के फॉर्म में, और इसका इस्तेमाल जो है ह्यूमन बींग्स के लिए किया जाता है। तो इस इंडस्ट्रियल लेवल पे इन सब चीज़ों को उसी प्रकार से बनाया जाता है, मैनिपुलेट करके जो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही बनाया जाता है। तो इस प्रकार से दूसरा जो फील्ड था आपका वो केमिकल एंड रेयर ड्रग्स में था। अब हम चलते हैं तीसरे पर, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स। अब प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स की बात करते हैं हम। अब आप जानते हैं the several vaccines which formed for that to the cure and diagnosis or removing to the some kinds of the diseases, just like to the, these are the viral disease, bacterial disease. So this is the viral, bacterial and protozoans. The removing are to the curing of to the special diseases, just like to the German measles, yellow fever, polio, hepatitis B, AIDS, and that to the going to the cholera, malaria, hepatitis B and तो इस प्रकार से हमने कुछ जो नाम लिया जो कि बच्चों को और जो है एडल्ट को वैक्सीन जो दिया जाता है। आप सोचते होंगे कि वैक्सीन कैसे बनती है और कहाँ से निकल के आती है। तो और एक विशेष प्रकार के रोगों में इसको दिया जाता है। द स्पेशल टाइप ऑफ द डिजीजेस दैट्स डायग्नोज्ड बाय टू द इम्यूनाइजेशन। इम्यून सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है वैक्सीनेशन किया जाता है। तो वो प्रोडक्शन ऑफ द वैक्सीन के रूप में आता है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जैसे कॉलरा है, कॉलरा है, जो है येलो फीवर होता है, पोलियो होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, एड्स है ना, मलेरिया है। तो तमाम प्रकार की डिजीज़ है जो कि जिसका वैक्सीन या इंजेक्शन दिया जाता है। और क्योंकि उसको उनके बॉडी में एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल जो है वैक्सीन दिया जाता है। क्योंकि जो वायरस है या बैक्टीरिया है या प्रोटोजोन्स है आपके बॉडी में, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन है और उनके खिलाफ ये लड़ सके, तो आपके बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ाता है और एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करता है, जिसके आधार पर ये इन सब बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है ये हमारे इम्यूनाइजेशन या फिर जो वैक्सीनेशन प्रोसेस होता है उसके माध्यम से आता है। तो ये जो वैक्सीन होता है वो आपके रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही बनते हैं। क्योंकि इनका जैसे अगर एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोन्स जो आपका वैक्सीन है वो कहाँ से आएगा, तो वो बैक्टीरिया से आएगा या फिर विशेष प्रकार के वैक्सीन के रूप में आएगा, जो कि वो उसी प्रकार के जो कि मैंने बताया कि कुछ जो नॉर्मल जीन होते हैं जो किस प्रकार, पहले तो ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस प्रकार का जो है डिजीज़ है, और उस डिजीज़ के अगेंस्ट में वो बैक्टीरिया है या वायरस है, तो उसके अगेंस्ट में उसी प्रकार का एंटी जो
एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल इंजेक्शन आपको दे दिया जाता है। और वो बनता है कैसे? जेनेटिकल डिजीज़ के रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो एंटी हेपेटाइटिक, एंटी रेबीज, एंटी फूट एंड द माउथ डिजीज वैक्सीन ऑफ द कैटल, कॉलरा, मलेरिया, वैक्सीन ऑफ द स्मॉल पॉक्स. So several kinds of the diseases which formed by the genetic engineering process, that is the edible vaccines, these are the transferred into the express up to the. So another one, biosynthesis of the interferons. This is a very important biosynthesis of interferon. Biosynthesis of to the interferon. तो इंटरफेरॉन, अब आप यहाँ पे समझिए कि इंटरफेरॉन क्या होता है. व्हाट अबाउट टू द इंटरफेरॉन? इंटरफेरॉन इज द एंटीवायरल प्रोटीन विच प्रोड्यूसेस बाय टू द cells or tissues when the time up to the any kinds of the virus which are introduced inside the body, that is infected to the tissues, and that's infected tissues is releasing to the protein which gives the message for that to the formation of to the protection to. तो कहने का मतलब होता है कि ये जो इंटरफेरेंस होता है ये बायोसिंथेसिस किया जाता है जेनेटिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से. मतलब उस प्रकार के जीन डीएनए सेगमेंट को लिया जाता है जहाँ से इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन हो सके, और इंटरफेरेंस जो है वो जेनेटिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से होता है. इंटरफेरेंस मैंने कहा कि ये वायरल प्रोटीन होता है, केवल वायरस के अगेंस्ट में जो टिश्यूज़ होती है वो क्या करती है, मैसेज करती है अपने एडजेसेंट टिश्यूज़ को, और वहाँ से ये प्रोटीन जो निकालती है उसके आधार पे वो अपने आप को कवर करती है, प्रोटेक्शन करती है, जिससे कि जो वायरस का जो इन्फेक्शन होता है वो दूसरे एडजेसेंट टिश्यूज़ पे ना हो पाए, और जो अपने प्रतिरोधक क्षमता के माध्यम से, बॉडी के प्रतिरोधक क्षमता के माध्यम से इम्यून सिस्टम को रिफॉर्म कर सके. क्योंकि ये निकलता कहाँ से है? जो ल्यूकोसाइट्स होती है, जो हमारी WBC होती है, WBC और ल्यूकोसाइट जो होती है, ल्यूकोसाइट्स वहाँ से ये इस प्रोटीन को निकालती है. इस प्रोटीन को निकालेगी, तो ये प्रोटीन को निकालती है, और उस प्रोटीन के माध्यम से, जैसे मैंने कहा कि ये एक टिश्यूज़ है और ये जो वायरस आया इस पर अटैक किया इसको जो है, तो ये यहाँ से ये जो लिम्फोसाइट्स जो होती है, जैसा मैंने कहा ल्यूकोसाइट्स हैं, तो यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स होती हैं ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करती हैं, और जो यहाँ पे दूसरी जो सेल्स होती है उसको ये अपने आप में प्रोटेक्ट इटसेल्फ, अपने आप में प्रोटेक्ट करती है इस वायरस के अगेंस्ट में. तो इस प्रकार के जो प्रोटीन होती है उसको इंटरफेरॉन बोलते हैं, और ये इंटरफेरॉन विट्रो कंडीशन में बायोसिंथेसिस जेनेटिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से किया जाता है, और वहाँ से उस जीन से उसको निकाला जाता है. तो इंटरफेरेंस का जो है ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो 1980-81 में जेनेटिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से किया जाता. सैकोरोमाइसिस सेरिविसी, सैकेरोमाइसिस जो बैक्टीरिया है उससे ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है, इकोलाई, वहाँ से जेनेटिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से इस इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन किया गया पहली बार, और वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है. नेक्स्ट चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आपके इम्यूनाइजेशन. जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इम्यूनाइजेशन जो प्रोसेस होता है, हाइब्रिडोमा एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, हाइब्रिडोमा एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. अब ये क्या है,
जैसा भी हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे, ये यहाँ पे ये जो है एंटीवायरल और एंटी कैंसरल जो है ये प्रोटीन को रिलीज करता है। अब दूसरे में देखते हैं हम, हाइब्रिडोमा एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत किसी एक विशेष प्रकार के एक विशेष प्रकार के डिजीज के या जीन के एक विशेष प्रकार, ओनली वन टाइप ऑफ द होमोजीनियस इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर द इम्यूनोग्लोबुलिन रिएजेंट ऑफ एंटी डिफाइंड स्पेसिफिसिटी। तो यहाँ पे किसी एक विशेष प्रकार की एंटीजन के खिलाफ एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का प्रोडक्शन करना या बनाना, वो ये क्या कहते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के माध्यम से होता है। और जो कि यहाँ पे तो कहा जाता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द आइडेंटिकल सेलुलर डिसेंट ऑफ द सिंगल सेट, द एंटीबॉडीज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल। तो एक विशेष प्रकार के हाइब्रिडोमा टेक्निक, क्या हाइब्रिडोमा है क्या पहले बता दें। हाइब्रिडोमा मतलब हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पे होगी, एक टेक्निक है विट्रो कंडीशन के अंतर्गत, जिसके माध्यम से एक विशेष प्रकार के सेल के द्वारा जो है एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है। मतलब इस टेक्निक के माध्यम से किसी एक विशेष प्रकार के डिजीज़ के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करवाना ही, जहाँ पे केवल एक विशेष प्रकार का ही सेल वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है मोनोक्लोनल, किसी एक ही के लिए मोनोक्लोनल, मतलब मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है वो हाइब्रिडोमा टेक्निक के माध्यम से। ये क्या है, प्रोसेस है या टेक्निक है। और इस टेक्निक के अंतर्गत किसी एक सेल के माध्यम से ये एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है। हम आपको एक ब्रीफ में बता दें कि ये यहाँ पे जो टेक्निक किया गया है, अप्लाई किया गया है, वो माइस से किया गया है। माइस जो माउस होता है, वहाँ से उसके स्प्लीन से पहले तो माउस को इंजेक्शन दिया जाता है और उस इंजेक्शन के अगेंस्ट में उसमें एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है। और ये एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन उसके विशेष पार्ट स्प्लीन से निकलता है, जहाँ पे एंटीबॉडीज़ वो प्रोड्यूस करती है, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है। और उस लिम्फोसाइट को उसको आइसोलेट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेटेड टू द लिम्फोसाइट आफ्टर द स्प्लीन ऑफ द माउस, एंड दैट्स टू द which are mixed with माइलोमा, जो कैंसर सेल होती है, उस सिंगल सेल के साथ में इसको मिक्सअप कर दिया जाता है। मिक्सअप विद द माइलोमा ऑफ द माइलोमा सेल्स जो होती है, जो कैंसर सेल होती है, उसके साथ मिक्सअप किया जाता है और कल्चर किया जाता है। और उसके बाद जो है वहाँ पे इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो उसके अगेंस्ट में जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होने जा रहा है, तो वो जो लिम्फोसाइट ऑफ द यहाँ से माइस का जो लिम्फोसाइट होता है, वहाँ जो लिम्फोसाइट्स जो सेल्स होती है वो वहाँ से निकलती है। और जो माइलोमा जो कैंसर सेल है, वो उसके साथ में जो मिक्सअप किया गया है, तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ का वो प्रोडक्शन करने लगता है। और उस एंटीबॉडीज़ का जो प्रोडक्शन होता है, तो उसी को एक्सट्रैक्ट करके जो है निकाला जाता है। तो उसी प्रोसेस को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बोला जाता है कि उसके अगेंस्ट में, उस कैंसरस सेल के अगेंस्ट में वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है। तो एक विशेष प्रकार की टेक्निक है, इसके ऊपर हम विशेष विस्तार में चर्चा करेंगे इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम ब्रीफ में देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या है। तो इस एप्लीकेशन, इस फील्ड में भी इसका रोल है, जहाँ पे एंटीबॉडीज़ को भी बनाया जा रहा है, इसको यहाँ पे इस टेक्निक के माध्यम से। आगे चलते हैं, यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट। अब अगले फील्ड क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल और ट्रांसजेनिक प्लांट। प्रोडक्शन ऑफ transgenic plant and crop improvement. अब इस फील्ड देखिए, दिस इज द वन ऑफ द फील्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट एंड द क्रॉप इम्प्रूवमेंट. This is the one of the field where the formation of the recombinant plant varieties for to the production of to the
यहाँ पर दिस काइंड्स ऑफ द फील्ड्स which are producing to the transgenic plant, that is the hybrid plant, in which that to make by the those kinds of the gene which are used for that to the formation of those kinds of the plant, which means that to the in against to the insecticide, pesticide, fungicide, herbicides, so and to the biological stresses, environmental stresses। तो कहने का मतलब होता है कि जो ट्रांसजेनिक प्लांट होता है वो जेनेटिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाया जाता है, और वो किसके अगेंस्ट में जो आपका पेस्टिसाइड्स होता है, इंसेक्टिसाइड्स होता है, हर्बिसाइड्स होता है, वीडिसाइड्स होता है, और जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस होती हैं उनके अगेंस्ट में वो रेजिस्टेंस पैदा करती है। तो ये इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस बनाती है, तो उस प्रकार के जीन को यहाँ पे डेवलप किया जाता है, उसका क्लोन बनाया जाता है, और उसके आधार पे इन विट्रो कंडीशन में ट्रांसजेनिक प्लांट का निर्माण किया जाता है, जो कि इन्वायरमेंटल जो कंडीशन हो उसके अगेंस्ट में कोई केमिकल का छिड़काव किया गया है किसी भी फॉर्म के रूप में या फिर जो है फर्टिलाइजर्स के रूप में, तो वहाँ पर जो है इसका प्रोडक्शन जेनेटिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से किया जाता है, और उसी के आधार पे क्रॉप इम्प्रूवमेंट जो फसल होती है, जो वहाँ पे जो उसके सीड्स में द वैरायटी ऑफ द सीड्स विच आर फॉर्म ड्यू टू द टेक्निक ऑफ टू द हाइब्रिडाइजेशन वेयर आर द formation up to the recombinant genes which for that to the production of to the प्रोडक्शन ऑफ एल्डिंग ऑफ टू द क्रॉप्स। तो क्रॉप के इम्प्रूवमेंट, सबसे पहले जो क्रॉप ऐसा क्रॉप जो कि अच्छा जो है उत्पादन दे सके, प्रोडक्शन कर सके, तो उसमें उसके जीन में जो है उसको संशोधित किया जाता है जेनेटिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से, और वो क्या करता है, वो प्रोडक्शन वो बढ़ाता है, और वो प्रोडक्शन तो दोनों के दोनों जो चीज़ें थी प्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट, वो उस जीन का निर्माण करने के बाद, उस जीन को प्राप्त करने के बाद, क्लोन को प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगले फील्ड की तरफ चलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? ये निफ नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन NIFC तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन जो जीन होता है निफ जीन बोला जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम टू द जीनोम ऑफ द बैक्टीरियम राइजोबियम। अब चूंकि अब इसके विषय में आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ पे होता है, जो कि लेग्यूमिनस या फिर राइजोबियम टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, और जो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है उसको वहाँ पे अमोनिया से नाइट्राइट टू नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्राप्त करते हैं। तो जो अब यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग है, तो इस प्रकार के जीनोम का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जीन का को राइजोबियम से प्राप्त करके जेनेटिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से इसको नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, विच आर इंट्रोड्यूसेस इनटू द नॉन लेग्यूमिनस प्लांट फ्रॉम टू द एक्सट्रैक्टिंग टू द that gene, this is the NIF gene, from to the leguminous plant is the rhizobium, so that to the which form to the clones and introduce into the non-leguminous, that to the develop to the this kinds of the नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी इन द। तो कहने का मतलब है कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी जो है जब इंट्रोड्यूस कराया जाता है
कौन सा जीन, निफ्स जीन जो इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो राइजोबियम में पाया जाता है, तो जाके वो उसमें भी वो क्वालिटी वो जो वहाँ पे दिखाई पड़ती है। तो ये अब आपको पता है कि ये जो क्वालिटी होती है इस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। दैट इज अ टाइप ऑफ द रिलेशनशिप दिस कॉल्ड टू द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इन विच टू द राइजोबियम बैक्टीरिया एंड टू द प्लांट्स रेड्यूल्स विच आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर एंड दैट्स टू द हैप। तो उसी प्रकार से नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में इसको जब इंट्रोड्यूस करा के इस प्रकार का जो है रिलेशनशिप दिखाया जाता है, तो वो जेनेटिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से ही पॉसिबल हो सकता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं 8वें में, एंजाइम टेक्नोलॉजी। एंजाइम टेक्नोलॉजी तो मतलब कि यहाँ पे मोर देन 2000 एंजाइम्स विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम टू द 2000 से ज़्यादा जो है बैक्टीरिया से एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करके निकाला गया है, और इस एंजाइम का इस्तेमाल जेनेटिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से जो इंडस्ट्री है, ये टेक्नोलॉजिकल जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे चीज़ बनाने में क्या कहते हैं डिटर्जेंट बनाने में, स्टार्च इंडस्ट्री में, ब्रीविंग, वायर इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मतलब कुछ विशेष प्रकार की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इस एंजाइम की मदद से, जो कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग के प्रोसेस के माध्यम से बैक्टीरिया से निकाला गया है, उसका इस्तेमाल इस इंडस्ट्री में किया जाता है। तो कहाँ पे, जैसे चीज़ इंडस्ट्री है, वायर इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल है, आपका क्या है जो डिटर्जेंट है, और स्टार्च इंडस्ट्री में। तो अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री है, वहाँ पे एंजाइम के रूप में जेनेटिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से वहाँ से बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करके उस डिजायर्ड जीन को वहाँ पे क्लोन बना के इस्तेमाल किया जाता है। तो एक फील्ड और है। नेक्स्ट चलते हैं 9वां, फूड प्रोसेसिंग। अब देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, फूड प्रोसेसिंग फॉर्मेशन। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और द जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन इन फूड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, रिकम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म को जो है ऑर्गेनिज्म कैन बी जनरेटेड एंड यूज टू मॉडिफाइड फूड्स टू ऑब्टेन डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स। तो क्या कहने का मतलब है, अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके वहाँ से जेनेटिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से जनरेट किया जाता है, और उसका इस्तेमाल फूड को मॉडिफाई परिवर्तित करने के लिए, जिससे कि उससे अलग अलग प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स का निर्माण हो सके, उसमें किया जाता है। या फिर दूसरा प्रोसेस ये है कि जो रिकम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डेवलप करके और उनमें इस प्रकार की कैपेबिलिटी को जो है ट्रांसफॉर्म किया जाए, जिससे कि वो इनटू फूड फॉर द ह्यूमन एंड द एनिमल कंजप्शन। तो इस प्रकार का फूड जो है प्रोसेस्ड फूड का फॉर्मेशन किया जाए, जो कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए कंज्यूम हो सके, और कुछ इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाए, जिस प्रकार से रेनिन और ट्रिप्सिन जो एंजाइम्स होते हैं आपके स्टमक में, जहाँ से वो मिल्क कार्ड फॉर्मेशन करते हैं या डाइजेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से आइसोलेट करके वहाँ से जनरेट किए जाते हैं, और उसका यूज विभिन्न प्रकार के फूड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला चलते हैं, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है। तो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया का यूज करके जेनेटिकल कह सकते हैं जीन। 10वां है फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन तो आप ऑलरेडी जानते, यू नो दैट वेरी वेल, दैट इज द फर्मेंटेशन प्रोसेस थ्रू द जेनेटिकल इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म टू द
टू द फर्मेंटेशन प्रोसेस कैन, तो वहाँ से हायर प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी कैन प्रोड्यूस सबस्टांसेस बियॉन्ड देयर नेचुरल कैपेबिलिटी। तो इस प्रकार से फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जो यहाँ पे ये है, नेक्स्ट है ऑयल पॉल्यूशन कंट्रोल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है ऑयल पॉल्यूशन कंट्रोल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पॉल्यूशन फील्ड में जो ऑयल्स के द्वारा जो पॉल्यूशन होता है वहाँ पे उसको कंट्रोल करने में इस जेनेटिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस के माध्यम से वहाँ पे इसका यूज होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऑयल स्पिल्स on the surface of the sea which are polluted to the areas during to the transportation of to the, this is the big problems and the big threat of the sea life. This is the having to the big threats and the big problems in the sea life, so that to the when the time of the transporting of to the materials. So Professor Anand Chakravarti, which are formed to the superbug, ये सुपर बग का प्रोफेसर आनंद चक्रवर्ती, इन्होंने सुपर बग का निर्माण किया। जो कि सुपर बग का निर्माण किया इन्होंने, एक बैक्टीरियम स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, विच कंज्यूम टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टू द हाइड्रोकार्बन्स विच फाउंड इन टू द ऑयल स्पिल्स। तो वहाँ पे सी में जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो हाइड्रोकार्बन्स उसमें मिल रहे हैं, ये जो सुपरबग होता है, जो स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया है, वो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स उनको क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है और धीरे धीरे वो पॉल्यूशन लेस कर देता है। मतलब वहाँ पे पॉल्यूशन को कम कर देता है, पॉल्यूशन को ख़त्म कर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑयल पॉल्यूशन कंट्रोल में भी इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बायो रेमिडिएशन प्रोसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके डिग्रेड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, बायो रेमिडिएशन प्रोसेस, बायो रेमिडिएशन प्रोसेस के माध्यम से, मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो जेनेटिकल इंजीनियर्ड जो प्रोसेसेस है उसके माध्यम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को जो है बायो रेमिडिएट कर दिया जाए, मतलब बायो रेमिडिएशन कर दिया जाए। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फील्ड्स विच इन्वॉल्व टू द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, सो दैट दिस टॉपिक इज ओनली रिलेटेड विद द एप्लीकेशन डिफरेंट काइंड्स। तो इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट फील्ड थे उसकी चर्चा हमने आज की कि क्या क्या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है उसका अलग अलग इस्तेमाल, जो जीन होते हैं उनके माध्यम से, क्लोनिंग के माध्यम से उसको अलग अलग फील्ड में यूज कर किया जाता है और वहाँ पे उसका प्रोडक्ट हम प्राप्त करते हैं। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। धन्यवाद।